In a move to improve their career prospects, UGC has approved a proposal to allow students to pursue 2 degree programs at the same time. One of the degrees has to be in regular mode and the other either in open and distance learning or online. A student can pursue 2 degrees in different streams as well as from different institutions. He/she may also opt for the same institution, provided it offers multiple modes of learning. Ban on Zoom. Police says the app made users vulnerable and prone to cyber threats. The Supreme Court on Friday asked the government to respond to a petition seeking a ban on the use of video communication app Zoom for official and personal purposes. A bench led by Chief Justice of India S.A. Bobde issued notice to the centre on the plea raising privacy concerns. The court said the government should file a reply in 4 weeks. It has alleged that the Zoom app practices data hoarding and cyber hoarding, which includes mass storage of personal data of its users and stores cloud recording instant messages and files. The COVID-19 lockdown has presented India's overburdened courts an opportunity to use tech-based solutions to speed up justice delivery. Tech companies were the first to implement work from home, but after 2 months of lockdown, some are keen to return to office. The detailed guidelines are to be notified soon. A committee under UGC Vice Chairperson Bhushan Patwardhan worked on the proposal based on feedback from the public. As per the committee, since there is a minimum attendance criteria attached to regular degree programs, the second degree has to be through distance or online mode. The committee feels that this will offer better career opportunities to students. UGC Secretary Rajneesh Jain said the Commission has approved the proposal and guidelines on the same would be notified. Based on this decision, a student will be allowed to pursue 2 degrees simultaneously, and for both the degrees the mode of delivery will be different. A student pursuing a regular degree can pursue a second degree only via ODL or online mode. सभी कॉलेजों में वाइवा और प्रैक्टिकल टेस्ट ऑनलाइन लेने की तैयारी। एक तरफ चाइना निर्मित जूम ऐप का उपयोग ऑनलाइन क्लासेस आदि में नहीं किए जाने की बात सामने आ रही है, वहीं सभी कॉलेजों में वाइवा और प्रैक्टिकल टेस्ट ऑनलाइन लेने की तैयारी भी हो रही है। यानी यह तय है कि जूम ऐप की बजाय अन्य ऐप से ही विश्वविद्यालय व कॉलेज प्रैक्टिकल व वाइवा लेंगे। बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित की गई विशेष कमेटी ने देश भर के लगभग सभी कॉलेजों में वाइवा टेस्ट ऑनलाइन कराने की सिफारिश की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। सिफारिश को अमल में लाते हुए अब दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत विभिन्न विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। UGC द्वारा गठित विशेष कमेटी के अध्यक्ष व हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति RC कुहार ने कहा कि अब कोरोना संकट काल के उपरांत भी सामान्य दिनों में पढ़ाई का 25% हिस्सा ऑनलाइन माध्यमों के जरिए ही पूरा किया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स इससे फैमिलियर हो पाएं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए यह जरूरी है। ऐसे क्रेडिट लाभ ले सकते हैं स्टूडेंट। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि छात्र ऑनलाइन लर्निंग कोर्स के लिए UGC के वर्तमान विनियमों के अनुरूप इस पाठ्यक्रमों को पूरा करके क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध 82 स्नातक UG व 42 स्नातकोत्तर PG गैर इंजीनियरिंग संकाय के वृहद मुक्त ऑनलाइन कोर्स MOC का उपयोग करने को कहा है, ताकि क्रेडिट स्थानांतरण को सुगम बनाया जा सके। स्वयं बोर्ड द्वारा मंजूर ये कोर्स जुलाई 2020 से शुरू होने वाले सेमेस्टर से पेश किए जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि छात्र ऑनलाइन लर्निंग कोर्स के लिए UGC के वर्तमान विनियमों के अनुरूप इन पाठ्यक्रमों को पूरा करके क्रेडिट का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि UGC ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ 82 UG एवं 42 PG गैर इंजीनियरिंग MOOC
पाठ्यक्रमों की एक सूची साझा की है, जिसकी पेशकश स्वयं प्लेटफॉर्म पर जुलाई 2020 सेमेस्टर में की जाएगी। मंत्री ने कहा कि इन पाठ्यक्रमों में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेस एवं बायो इंजीनियरिंग, शिक्षा, कानून, कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग, वाणिज्य, प्रबंधन, फार्मेसी, गणित, इतिहास, हिंदी, संस्कृत आदि जैसे विषय क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी के वर्तमान परिदृश्य में छात्र, शिक्षक, जीवन पर्यंत सीखने के इच्छुक लोग, वरिष्ठ नागरिक एवं गृहिणियां नामांकन करा सकती हैं। आपको बता दें कि स्वयं प्लेटफॉर्म पर IIT, इग्नू, IIM बेंगलोर, NCERT और अन्य द्वारा ऑफर किए गए विभिन्न कोर्स में एडमिशन ओपन हो गए हैं। इस प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनिमल फिजियोलॉजी, इंटरैक्टिव मैथमेटिक्स सॉफ्टवेयर, जियोजेब्रा आदि कोर्सेज उपलब्ध हैं। स्वयं प्लेटफॉर्म के जरिए 9वीं से पोस्ट ग्रेजुएट PG लेवल तक के स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स आसानी से कोई भी कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त में उपलब्ध है।